بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لائف چینجنگ اردو ناول میں خوش آمدید۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میری اسٹرگل پسند آئے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیجیے گا اور فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں ناول رب سے جڑنے کے سفر کی قسط نمبر 2 کی طرف۔ بہت کچھ تھا جو اس کے اندر کچے دھاگوں کی مانند الجھتا جا رہا تھا۔ وہ مزید وہاں رکنے کی پوزیشن میں نہ تھی۔ اب اسے یہاں سے جانا تھا، کسی ایسی جگہ جہاں بس وہ اپنے رب کے سامنے کھل کر رو سکے۔ تمہارا بہت بہت شکریہ کرت، تم نہیں جانتی آج تم نے مجھے کیا دیا، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہ چکا پاؤں گی، فاطمہ نے کھڑے ہو کر آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ قرۃ العین مسکراتے ہوئے اس کے گال کو تھپکتے ہوئے پیار سے بولی، ارے لڑکی، یہ سب تو تمہیں اللہ نے آج اس وقت اس جگہ ہی دینا تھا، مجھے تو بس اس نے ذریعہ بنایا۔ الحمدللہ، کثیر اللہ کا بے شمار احسان ہے ہم پر۔ یہ کیسی لڑکی تھی، کس دنیا کی عاجزی تھی اس میں۔ فاطمہ کو اسے دیکھ کر بے انتہا رشک آ رہا تھا۔ اس کے دل میں خواہش جاگی کہ مجھے بھی اللہ کی ایسی ہی پیاری بندی بننا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ بہتی آنکھوں سے مسکرا دی۔ اس کے بعد فاطمہ قرۃ العین سے اس کا نمبر لے کر اس کے گھر سے نکل آئی۔ فاطمہ کے جانے کی اس سے پیے وہ اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا رہے۔ باہر بہت سہانا موسم تھا، مغرب کا وقت ہونے ہی والا تھا۔ تیز ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جس کی وجہ سے درخت کی ٹہنیاں اوپر نیچے جھول رہی تھی، گویا اپنے خالق کی تسبیح کر رہی ہوں۔ اسے فوراً سے وہ آیت یاد آئی جس میں اللہ نے فرمایا، ساتوں آسمان اور زمین اور جو لوگ ان میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں، اور مخلوقات میں سے کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ بے شک وہ بردبار اور غفار ہے۔ اس عرش پر مستوی رب کا کلام حق تھا، سچ تھا، مگر بہت کم لوگ ہی تھے جو اس کے کلام سے ہدایت لیتے تھے۔ یہ آیات یاد آتے ہی اس نے زیر لب تسبیح کرنا شروع کر دی۔ پتوں کی سرسراہٹ، چڑیوں کی چہچہاٹ اور غروب ہوتے ہوئے سورج سے سارا سما بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ کائنات کی ہر چیز کو دیکھ کر اسے اپنا رب یاد آتا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اس کی بنائی ہوئی چھوٹی بڑی تخلیق کو سراہتی رہتی تھی۔ ابھی بھی وہاں کھڑے کھڑے وہ یہی کر رہی تھی، مسکراتے ہوئے زرد آسمان کی جانب دیکھ رہی تھی، گویا آسمانوں کے پار کہیں کسی کو محسوس کر رہی ہوں۔ اسے فاطمہ پر بہت پیار آ رہا تھا۔ اسے ہمیشہ ہی سے ان لوگوں سے بہت اپنائیت محسوس ہوتی تھی جو اپنے رب کی طرف پلٹ آتے ہیں۔ وہ اپنے رب سے محبت کرتی تھی، اس لیے اسے ہر اس انسان سے محبت تھی جو اس کے رب سے محبت کرتا تھا۔ فاطمہ بھی اس راستے پر قدم رکھ چکی تھی۔ اس کے دل سے فاطمہ کے لیے بہت دعائیں نکل رہی تھی کہ اللہ اس کے دل کو اپنے لیے خاص کر دیں، اسے اپنی طرف کھینچ لائیں، اسے اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیں۔ ابھی یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ دور پار اسے مغرب کی اذان سنائی دی۔ وہ فوراً سے پلٹی تو اسے خیال آیا کہ اس کے ہاتھوں نے ابھی بھی قرآن کو بہت مضبوطی مگر محبت سے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ وہ واپس رکھنے کے لیے الماری کی طرف بڑھ ہی رہی تھی کہ اس نے چلتے چلتے ایسے ہی قرآن کھولا تو سامنے یہ آیت تھی، اور جب وہ لوگ اس کتاب کو سنتے ہیں جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق بات پہچان لی، اور وہ خدا کی جناب میں عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم ایمان لے آئے، تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ لے۔ سورۃ المائدہ۔ اس کی دھڑکن فوراً سے تیز ہو گئی اور قدم وہیں جم گئے، آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہی پرنم آنکھوں سے مسکرا کر اس روشن آیات پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی، او فاطمہ، تم کیا جانو تمہارا رب تمہارے ان بہتے ہوئے آنسوؤں کی کتنی قدر کرنے والا ہے۔ فاطمہ شہر کے اس علاقے میں پہلی مرتبہ آئی تھی۔ یہ وہ علاقہ تھا
जहाँ मिडिल क्लास की फैमिलीज रहती थी। एक ही दीवार के साथ जुड़े घरों में रहने वाले आपस में भी जुड़कर रहना जानते थे। फातिमा कुर्रतुल-ऐन की वालिदा से मिलने के बाद घर से निकल आई थी। गली में बच्चे आपस में खेल रहे थे। इसी गली के कोने पर चाचा सलीम गाड़ी में उसका इंतज़ार कर रहे थे। फातिमा अपने ख्यालों में गुम चले जा रही थी कि अचानक आसपास खेलने वाले बच्चों ने उसे सलाम किया। वो हैरत से मुतवज्जा हुई। बच्चे सलाम करने के बाद दोबारा से खेल में मसरूफ़ हो गए। इसने भी जवाब दिया तो एक बच्ची भागते हुए इसके पास आई। आपी आपी, आप बाजी की दोस्त हैं? वो नन्ही सी बच्ची पुरजोश अंदाज में पूछ रही थी। बाजी कौन? फातिमा ने नीचे झुकते हुए प्यार से उसका गाल खींचते हुए कहा। एनी बाजी, आप उनके घर से आ रही हैं ना? बच्चे ने कुर्रतुल-ऐन के घर की तरफ इशारा करते हुए फातिमा को बताया। ओह वो बाजी, जी मैं उनकी दोस्त हूँ, फातिमा ने मुस्कुराते हुए कहा। वो समझ गई थी कि बच्चे कुर्रतुल-ऐन के पास कुरान पढ़ने आते हैं, इसलिए उन्होंने उसे सलाम किया था। ऐसे ही नहीं बल्कि वो हर आने जाने वाले को सलाम कर रहे थे, बिल्कुल कुर्रतुल-ऐन की तरह। यूनिवर्सिटी में वो भी ऐसे ही खुद आगे बढ़ कर सबको सलाम करती थी। उसके स्टूडेंट्स भी उस जैसे थे। बच्ची दोबारा से अपने खेल में मसरूफ़ हो चुकी थी, जबकि फातिमा गली से निकलकर गाड़ी में आकर बैठ गई और बैठते ही चाचा सलीम को सलाम किया। चाचा सलीम उनके ख़ानदान के बहुत पुराने ड्राइवर थे। उनकी पुरानी फैमिली फातिमा के घर में सर्वेंट क्वार्टर्स में रहती थी और उनके घर का सारा काम काज करती थी। वालेकुम सलाम फातिमा बेटी। चाचा सलीम हैरत से फातिमा को जवाब देते हुए उसकी तरफ देख रहे थे, क्योंकि उसका ऐसे सलाम करना उनके लिए बिल्कुल नया था। खैरियत से इस जगह आई हो बेटी? पहले तो कभी नहीं आई। जी चाचा, बस यहाँ एक दोस्त रहती है, इससे मिलने आई थी। फातिमा ये कहकर कुर्रतुल-ऐन का कागज़ पर लिखा हुआ नंबर अपने मोबाइल में सेव करने लगी। चाचा सलीम गाड़ी गलियों से निकालकर मेन रोड पर ले आए। दूर दूर से मगरिब की अज़ानों की आवाज़ें आ रही थी। देखो फातिमा, मैं तुम्हें दोबारा कह रही हूँ, तुम उसके बारे में सोचना छोड़ दो। वो बंदा सिर्फ टाइम पास कर रहा है, तुम्हें हकीकत क्यों नहीं नज़र आती? अलीना इस बार कुछ गुस्से में आ गई थी। आना भी चाहिए था। कितने माह हो गए थे उसे फातिमा को समझाते समझाते कि सुफियान से बच कर रहे, वो सिर्फ उसके साथ टाइम पास कर रहा है। अलीना कोई ख़ास मजहबी ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखती थी, मगर उसका किरदार बहुत मजबूत था। उसे अपने लिमिट्स का बखूबी अंदाज़ा था। उसे अपने वालिदैन की इज़्ज़त का भी ख्याल था। अगर उसके वालिदैन इतनी मेहनत और उम्मीदों से उसे इतनी महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, तो उसे बदले में उनको धोखा नहीं देना चाहिए। उसे अपने नफ्स के लिए अपनों को अजियत नहीं देनी चाहिए। अगरचे फितना हर तरफ था, यूनिवर्सिटी का माहौल बेहयाई से भरपूर था। हर तरफ लड़के लड़कियां कपल की सूरत में नज़र आते थे। ऐसे लगता था वहाँ पढ़ाई से ज़्यादा ऐसी दोस्तियाँ अहम हैं। अलीना फातिमा से 2 साल बड़ी थी। उसकी तरबियत भी ऐसी हुई थी कि वो समझदार थी। वो मज़ीद फातिमा को अजियत में नहीं देख पा रही थी। आज भी यूनिवर्सिटी के लॉन में बैठी उसे समझा रही थी। मैं क्या करूँ अलीना, मैं खुद भी थक चुकी हूँ। मुझे ऐसे लगता है जैसे मुझे किसी चीज़ ने अंदर से जकड़ लिया हो। इस अजियत ने मुझे बेचैन कर रखा हुआ है। हमेशा की तरह फातिमा आज भी रोती, मगर वो आज बहुत थकी हुई दिखाई दे रही थी। अलीना जानती थी वो इस सब से जान छुड़ाना चाहती है, मगर उसे रास्ता नहीं मिल रहा। उसे फातिमा पर बहुत तरस आ रहा था। अलीना, मैंने उसे ऐसी बहुत सी लड़कियों के साथ देखा है। मैं जानती हूँ मेरे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है। मैंने कोशिश भी की है खुद को दूर रखने की। मैंने उसका नंबर, उसका अकाउंट सब कुछ ब्लॉक कर दिया, मगर इस दिल का क्या करूँ? वो उसके हाथों फिर से मजबूर हो जाती हूँ। बताते बताते फातिमा दोनों हाथों पर चेहरा रखकर रोती। अगरचे उसके वालिदैन की तरफ से उसे ऐसी कोई पाबंदी ना थी, मगर वो कहते हैं ना कि जब जमीर जिंदा हो तो इंसान को बुराई चैन से नहीं बैठने देती। अल्लाह ने हर इंसान के अंदर उसकी अच्छाई और बुराई इल्हाम कर रखी है। ये भी हकीकत है कि इंसान का नफ्स बुराई की तरफ माइल होता है, लेकिन वो उससे उसके इर्द गिर्द तकवा की दीवारें खड़ी ना करे तो वो उस बुराई के जाल में फंस जाता है और फिर अज़ियत और बेचैनी किसी का कुछ हाथ नहीं आता। उसका भी
के अंदर के साथ इससे मुखातिब हुई। फातिमा उसकी मुस्कुराहट उसके सियाह नकाब की वजह से देख ना पाई थी, मगर उसकी आंखों में चमक और वालहाना अंदाज से मिलने वाले जवाब पर फातिमा भी मुस्कुराती। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आओ आओ बैठो। कुर्रतुलैन ने थोड़ा सा साइड पर होते हुए फातिमा को जगह दी और फाइल साइड पर रख दी और उसकी तरफ मुतवज्जे हुई। फातिमा कंधे से अपना बैग उतारते हुए उसके साथ बैठ गई। इस दिन के बाद उसे आज फातिमा कुर्रतुलैन से मुलाकात कर रही थी। कुछ था इसमें जो फातिमा को अपनी तरफ खींचता था। वो अक्सर नोट करती थी कि क्लास की बहुत सी लड़कियां कुर्रतुलैन से बच बच कर रहती थी, शायद किसी अनजाने खौफ का शिकार थी। मगर फातिमा को अभी एहसास हो रहा था कि बज़ाहिर नजर आने वाले ये अजनबी से लोग कितने मुखलिस होते हैं। इसने और बेदीन वाले देखे थे, मगर कुर्रतुलैन की अल्लाह से ऐसी मोहब्बत और ताल्लुक़ ने इसे पहली मर्तबा देखा था। यही वजह थी कि आज वो फिर से उसकी तरफ खींची चली आई थी। किरत, तुम्हें पता है, इस दिन मैं तुमसे मिलकर वापस अपने घर आई तो मगरिब का वक्त हो जाने वाला था। इस दिन मैंने सबसे पहले नमाज अदा की कि मैं मज़ीद अपने रब के साथ बेवफाई नहीं कर सकती। मैं जब नमाज के लिए खड़ी हुई, मुझे ऐसा लगा कि मैं मज़ीद नहीं खड़ी हो पाऊंगी। मेरे कदम बहुत बोझल हो गए थे, दिमाग माफ हो गया था, दिल ऐसे था जैसे बाहर निकल आएगा। आंखें बहती जा रही थी। मुझे याद नहीं कि मैंने क्या पढ़ा नमाज में, बस इतना याद है कि पहली रकात का पहला सजदा। बहुत सिसकियाँ लेकर रोई थी। इस नमाज के बाद मुझे अपने अंदर एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ था जो पहले कभी न हुआ था। उसके बाद से अब तक मैंने कोई नमाज नहीं छोड़ी। फातिमा सामने लॉन में घास पर नजर जमाए में कांकी अंदाज में सब कही जा रही थी। कुर्रतुलैन हंसते मामूल मुस्कुरा कर उसकी सब बातें सुन रही थी और साथ में अल्हम्दुलिल्लाह कहे जा रही थी। मगर किरत, नमाज के बाद मुझे वो जो सुकून मिलता है ना, वो वक्ती होता है। मुझे अपने अंदर बहुत खला महसूस होता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या वजह है। देखो, अब तो मैं उसे भी छोड़ चुकी हूँ जो मुझे अल्लाह से गाफिल किए हुए था, फिर भी मुझे एक अजीब सी तशनगी रहती है। मेरा दिल मुस्तरिब रहता है। किरत, मैंने तो सुना था कि अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है, फिर मुझे क्यों नहीं हर वक्त वो सुकून मिलता? वो रुहासी हो रही थी, ऐसे जैसे अपने आंसू और अंदर की अजियत को मज़ीद अंदर दबा रही हो। मगर कुर्रतुलैन समझ रही थी कि उसकी इस बेसुकूनी की क्या वजह है। इसने मुस्कुराकर कहा, फातिमा, पता है, हम इंसानों की ज़िंदगी का एक इन्हिसार रूह और जिस्म दोनों पर है। अगर ये रूह हमारे जिस्म से निकल जाए ना, तो ये जिस्म बेकार है। यानी हमारी ज़िंदगी का अहम तरीन पार्ट हमारी रूह है, जैसे हमने बहुत ख्याल से रखना होता है। मगर आज की इस ज़ाहिरियत परस्ती की दुनिया में हमने ज़ाहिरी जिस्म को तो बहुत तवज्जो दी है, मगर अपने अंदर की नज़र ना आने वाली रूह को बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। यही वजह है कि खूबसूरत जिस्मों में बेचैन दिल धड़कते हैं। लोगों को लगता है कि वो ज़ाहिरी खेल कूद और हंसी मजाक से खुद को खुश रख सकते हैं, मगर ये बिल्कुल गलत है। आपके जज्बात का ताल्लुक आपके दिल से होता है और दिल का ताल्लुक रूह से होता है। इस रूह की ज़रूरियात पूरी करने से इंसान को सुकून मिलता है। मगर किरत, मैं तो नमाज़ पढ़ती हूँ, दुआएं भी मांगती हूँ, क्या इससे भी मेरी रूह की ज़रूरत पूरी नहीं हो रही? फातिमा उसकी बातें सुनकर हैरान सी थी। देखो फातिमा, नमाज फ़र्ज़ है, ये बिल्कुल हमारी रूह की ज़रूरत है, मगर सिर्फ नमाज पढ़ना काफ़ी नहीं है। तुम खुद बताओ, हम सारा दिन सिर्फ खाना खाएं, पानी ना पिएं, क्या इससे हमारी ज़रूरत पूरी होगी? फातिमा ने नफ़ी में सर हिलाया। बिल्कुल इसी तरह हमारे लिए नमाज के साथ और भी काम बहुत ज़रूरी हैं जो हमारी रूह की ज़रूरत पूरी करेंगे। नमाज में तुम अल्लाह से सरगोशी करती हो, मगर क्या तुम्हें मालूम है कि अल्लाह तुमसे क्या चाह रहे हैं? फातिमा ने फिर से उदासी के साथ सर नफ़ी में हिलाया। यही वजह है कि कोई भी ताल्लुक़ तब तक फ़ायदा मंद नहीं होता जब तक यकतरफ़ा हो। तुम्हें अल्लाह के साथ तो सबसे पहले खुद ताल्लुक़ कायम करना है, तो सबसे पहले खुद पर काम करना होगा। फातिमा के लिए ये सब बातें बहुत गहरी मगर नहीं थी। उसे ऐसे लग रहा था
کہ جیسے اس کے ذہن کے پردے چھٹتے جا رہے ہوں، اور واقعی اسے اب اپنا مسئلہ سمجھ آنے لگا تھا۔ اسے جاننا تھا کہ اللہ اس سے کیا چاہتے ہیں، مگر کیسے۔ اس کی سوالیہ نظریں اب آسمان کی طرف اٹھ گئی تھی۔ وہ اندھیری کائے میں گرتی ہی جا رہی تھی۔ اس کا جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ وہ حلق پھاڑ کر چیخنا چاہ رہی تھی، مگر آواز ساتھ نہ دے پا رہی تھی۔ اس نے ہوا میں بہت ہاتھ پاؤں مارے، مگر کوئی سہارا ہاتھ نہ آیا۔ وہ کتنی ہی دیر ایسے تیزی سے سر کے بل نیچے کی طرف آ رہی تھی، اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھنا چاہ رہی تھی، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ شدید خوف کے مارے وہ کیفیت تھی کہ آنسو پھر سے حلق میں گولے کی صورت میں جمع ہو کر اس کا سانس لینا دشوار کر رہے تھے۔ بہت زور لگانے پر آخر ایک لفظ اس کے منہ سے نکلا، اور ساتھ ہی اس کا جسم کسی پرنور اور روشن سی جگہ پر نرم و ملائم سبز گھاس پر آ کر گر گیا۔ وہ اچانک سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ پوری طرح سے ہانپ رہی تھی۔ سردی کے موسم میں پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا اور انگلیوں پر لگا پسینہ دیکھنے لگی۔ اتنے میں اس کے کمرے کا دروازہ دھڑم سے کھلا۔ فاطمہ بیٹا تم ٹھیک ہو؟ مسز ریان گھبرائی ہوئی آگے بڑھ کر اس کو ساتھ لگاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ جی ماما، بس وہ شاید خواب دیکھا تھا تو ڈر گئی۔ فاطمہ اپنی یادداشت پر زور دینے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس نے کیا دیکھا تھا۔ اس کا سانس ابھی تک بحال نہ ہوا تھا۔ میں تو کچن میں پانی لینے آئی تھی کہ یوں تمہاری آواز سن کر گھبرا گئی اور یہاں آ گئی۔ ماما میری بھی کوئی آواز آئی تھی کیا؟ فاطمہ حیران و پریشان اپنی ماما کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہاں بیٹا، مجھے واضح سنائی تو نہیں دیا کہ تم نے کیا کہا، مگر تم بہت چیخ کر بولی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ مسز ریان پریشانی سے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے بولی۔ فاطمہ نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنی انگلیوں پر لگے پسینے کو صاف کرنے لگی۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اب اس کی ماما نے اسے مزید الجھا دیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ ہائے فاطمہ، کدھر ہو یار؟ موبائل کی بیل رنگ ٹون ہوئی۔ یہ سفیان کا میسج تھا جو اسکرین پر چمک رہا تھا۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا۔ دل زور سے دھڑکنا شروع ہو گیا، مگر اس دن علینا کے سمجھانے کے بعد اب وہ پکا ارادہ کر چکی تھی کہ آج کے بعد وہ سفیان سے بات نہیں کرے گی۔ موبائل سائڈ پر رکھ کر وہ پھر سے کتاب کی طرف دیکھنے لگی۔ رات کے 8 بجے کا ٹائم تھا۔ اس کے ریشمی بال کمر پر بکھرے تھے۔ وہ بیڈ پر کتابیں پھیلائے پڑھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ساتھ میں پڑا کافی کا مگ کب کا ٹھنڈا ہو چکا تھا، مگر وہ فوکس نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے کتاب بند کی اور اپنا سر بیڈ کے کراؤن کے ساتھ لگا کر آنکھیں بند کر دی۔ دوبارہ سے بپ ہوئی۔ اس نے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ آخری بات کر لو، اسے آرام سے کہہ دو کہ آج کے بعد وہ تمہیں کوئی میسج نہ کرے، وہ پریشان ہو رہا ہوگا۔ کسی نے اس کے اندر سرگوشی کی۔ اس نے آنکھیں کھولی، ہاتھ موبائل کی طرف بڑھایا۔ فاطمہ، تم نے تو خود سے وعدہ کیا تھا کہ تم اب اسے کبھی بات نہیں کرو گی۔ ایک اور آواز اندر سے آئی۔ اس کا بڑھتا ہوا ہاتھ دوبارہ سے رک گیا۔ دوبارہ بپ ہوئی۔ فاطمہ، وہ تمہاری بہت کیئر کرتا ہے۔ تم نے اگر اسے چھوڑ دیا تو وہ خود کو کچھ کر لے گا۔ کیا تم سے یہ برداشت ہو جائے گا کہ تم خوش رہ لو گی اس کے بغیر؟ کیا تم چین سے رہ سکو گی کہ کوئی تمہاری وجہ سے اذیت میں ہو؟ کسی نے دوبارہ اس کے اندر سرگوشی کی۔ اس کے حلق میں کچھ اٹک سا گیا تھا۔ آنکھیں مزید گرم ہو گئی۔ اس نے سرگوشی کے بعد اس نے آگے بڑھ کر موبائل اٹھا لیا۔ فاطمہ، یہ ٹھیک نہیں ہے، ایسا مت کرو، یہ تعلق جائز نہیں ہے۔ فاطمہ اب ریپلائی کرنے کے لیے ٹائپ کر رہی تھی۔ فاطمہ رک جاؤ، اپنا وعدہ مت بھولو، وہ کچھ نہیں ہے تمہارا۔ تم اس تعلق کا انجام بھی جانتی ہو، محض اضطراب ہے، مت کرو ایسا۔ اندر سے آنے والی آواز پہلے کی نسبت دھیمی ہو گئی تھی۔ ریپلائی سینڈ ہو چکا تھا۔ پاس ہی موجود وہ کبھی شکل کی مخلوق کہکا لگا کر ہنسی۔ پھر سے نفس جیت چکا تھا۔ وہ اپنا وعدہ توڑ چکی تھی۔ اندر کچھ تو تھا جو یکدم اداس ہو گیا تھا۔ وہ پھر سے شیطان کو خوش اور رحمان کو ناراض کر بیٹھی تھی۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ بات ختم ہو چکی تھی۔ ہمیشہ کی طرح نفس کی شہوت اور ہوس غالب آ گئی تھی۔ کیا یہ محبت تھی؟ فاطمہ نے موبائل رکھ کر خود سے پوچھا، کیا واقعی اسے محبت کہتے ہیں، جو انسان کو وقتی لذت دے پھر سے بے چین کر دیتی ہے، جس کا انجام اندیکھا ہے؟ وہ ہمیشہ اس رشتے کا انجام سوچ کر خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ کیا وصال ممکن تھا؟ اس کے ارد گرد پھیلے ہزاروں افیئرز کی طرح اس رشتے میں بھی بس جدائی یا دھوکہ تھا۔ ایک عجیب سی گھٹن نے اسے گھیر لیا تھا۔ کہیں دور سے عشاء کی اذان کی آواز آنے لگی۔ اس نے ٹائم دیکھا تو 7 بج چکے تھے، یعنی وہ پورا 1 گھنٹہ سفیان سے چیٹنگ کرتی رہی۔ اسے احساس ہی نہ ہوا تھا، ہوتا بھی کیسے۔ نفس کی خواہشات پوری کرتے کرتے
इंसान को लम्हात तो क्या घंटों के ज़िया की भी खबर नहीं होती। एहसास ज़िया तो दूर की बात है। इसने अजान को इग्नोर करके दोबारा मोबाइल उठाया और व्हाट्सएप ऑन किया। किसी का कोई मैसेज नहीं था। स्टेटस का नोटिफिकेशन देखकर वो अपने कॉन्टैक्ट्स के स्टेटस सीन करने लगी। यकायक कुर्रतुलैन का स्टेटस सामने आया जो अभी 17 मिनट पहले ही अपलोड किया गया था। कौला अल्लाह ताला और हमने इनमें से अक्सर लोगों को अहद का पाबंद नहीं पाया, इनमें से अक्सर लोगों को नाफरमान ही पाया। सूरतुल अराफ। उसका ये स्टेटस देखकर फातिमा का दिल जैसे लम्हे के लिए बंद हो गया। उसके हाथ कांपने लगे। कुर्रतुलैन अक्सर अपने स्टेटस पर आयात या अहादीस लगाया करती थी। फातिमा अक्सर इग्नोर कर जाती थी या सर से हिस्सा पढ़कर गुजर जाती थी, मगर आज वो इस आयत को इग्नोर न कर पाई थी। उसे ऐसे लगा जैसे किसी ने बहुत जोर से उसे झंझोड़ कर रख दिया हो। दिल की बेचैन धड़कन ने आंखों को फिर से गर्म कर दिया था। वो अक्सर कुर्रतुलैन की बातों पर हैरान होती थी कि उसे कुरान से कैसे जवाब मिल जाते हैं। कुछ दिन पहले जब वो कुर्रतुलैन के घर गई तो उसे भी एक जवाब मिला था। उसके बाद उसने पक्का इरादा कर लिया था कि अब वो दोबारा इस गुनाह में मुलविस नहीं होगी। मगर आज वो फिर से अपने साल पहले नाज़िल शुदा अल्फाज आज कैसे इसकी सिचुएशन के बारे में जवाब दे सकते थे। नाफरमान यानी मुझे, मैं नाफरमान, हाँ फिर से नाफरमानी कर बैठी। मोबाइल साइड पर रखकर वो फौरन से वॉशरूम की तरफ भागी और वुज़ू करके जाए नमाज सबसे कांप रहा था। नमाज के बाद इसने कांपते हुए हाथ उठाए। ओ अल्लाह, आई एम सॉरी, रियली सॉरी, मैं फिसल गई थी, मैं फिर से फिसल गई थी। इसने सही कहा, मैं नाफरमान ही तो हूँ। मैंने अपने वादा पूरा ना किया। हिचकी बन चुकी थी। अल्लाह प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। आपने उस दिन अपनी आयत के ज़रिए मुझे हौसला दिया था ना कि आप सब गुनाह माफ़ कर देते हैं, मगर देखें आज मैं फिर से गुनाह कर बैठी। अल्लाह प्लीज़ मुझे नाफरमान नहीं बनना, मुझे भी किरत की तरह आपकी प्यारी बंदी बनना है। अल्लाह प्लीज़, मैं कमज़ोर पड़ रही हूँ, मेरे दिल को संभाल लें प्लीज़ अल्लाह। चेहरा हाथों में छुपाए वो बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रो रही थी। रोते रोते वो सजदे में गिर गई। ज़मीन उसकी निदामत में डूबी सिस्कियों की गवाहियाँ समेट रही थी। हत्ता कि उसके दिल पर सकनीत नाजिल होने लगी। उसे पता ही न चला कि वो कब नींद की आगोश में चली गई। शहरयार रुको, अम्मी अम्मी देखें, इसको ये मुझसे मार खा लेगा, मैं कह रही हूँ। नायला शहरयार के पीछे नंगे पाँव भाग रही थी, जो मजाकन उसका मोबाइल उसके हाथ से छीनकर भाग रहा था। दोनों बहन भाइयों की असली मोहब्बत और छेड़छाड़ उनके घर का मामूल थी। शहरयार नायला से 1 साल छोटा था। दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। रोज़ दोनों की शरारतों और प्यार भरी लड़ाइयों से उनकी माँ बहुत महसूस होती थी। माँ ने तन्हा मुशक्क़तें करके उनको पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक कि आज वो इस मकाम तक पहुँच गए थे। शहरयार सेकंड टाइम कारोबार के साथ साथ ऑनलाइन जॉब करता था, जिसकी वजह से उनका गुजारा अल्लाह के फजल से अच्छे से हो रहा था। अम्मी ये हमेशा ही ऐसे करता है, मैं जब भी मोबाइल यूज़ कर रही हूँ तो ये छीन जाता है, मैंने तो कभी इसके साथ ऐसा नहीं किया। नायला रुहासी हो गई थी। उसकी माँ ने हंसते हुए शहरयार से कहा, शहरयार बहन को तंग मत किया करो, तुम्हें पता है ना कि वो कुछ अर्से की मेहमान है। शहरयार कहका लगाकर हंसा। नायला मजीद चिढ़ गई। उसे ये बात आग की तरह लगती थी और उसकी माँ ऐसे मौके पर इसी बात से ही उसको छेड़ा करती थी। ये ले भाई, आप तो मेहमान हैं, आप कुछ अर्से की। शहरयार ने आंख मारते हुए माँ की तरफ देखा और हंसते हुए मोबाइल वापस हाथ में दे दिया। नायला ने छीनने के अंदाज में मोबाइल लिया और मुँह चिढ़ाती वापस अपने कमरे की तरफ मुड़ गई। उसे ऐसे देखकर दोनों माँ बेटा हंसने लगे। किरत, मेरा दिल कहता है इससे बिल्कुल बेनियाज हो जाऊँ, उसकी यादों से, उसकी बातों से। हत्ता कि वो सामने भी आए तो मुझे कोई फ़र्क न पड़े। पिछली रातों के वाक़ये के बाद आज फातिमा यूनिवर्सिटी में लेक्चर से फ्री होते हुए कुर्रतुलैन के पास आई थी। कल रात इतने वाज़ेह आयात मिलने के बाद वो अब तक संभल नहीं पा रही थी। वो इस धोखे के जाल से निकलना चाहती थी। मैं जानती हूँ मैं बहक गई थी, मुझे खुद को बचाना चाहिए था, मगर अब मैं क्या करूँ, दिल अपने इख्तियार में तो नहीं होता ना। वो हंसी हुई थी। फातिमा, यह हकीकत है कि दिल अपने इख्तियार में नहीं होता, मगर देखो इसको बेइख्तियार करने का इख्तियार ज़रूर हमारे हाथ में है। तुम जानती हो अल्लाह ने क्यों कुरान में औरत और मर्द की नज़रों की हिफाजत का हुक्म दिया है। कुर्रतुलैन के सवालिया अंदाज पर फातिमा ने नफी असर, इसलिए हमारे दिल का सफ़र हमारे इख्तियार में रहे। दिल अल्लाह के हाथ में ज़रूर है,
मगर इस मामले में हम इतने भी बेबस नहीं हैं। नज़रों की हिफाजत सबसे पहला अमल है जिससे इंसान या तो दिल का सुकून बचा सकता है या उसे बर्बाद कर सकता है। इसलिए पहले तो इस बात को माइंड से निकालो कि तुम्हारा खुद को कोई प्यार नहीं। अब वो काफ़ी संजीदा होकर फातिमा को समझा रही थी। आखिर क्यों वो समझाती? वो दिल जिन्हें रब की मोहब्बत को तड़पना चाहिए था, इतना बेरहम और नाजायज़ मोहब्बत में तड़प रहा हो। ये रब के हक में जुल्म नहीं तो और क्या है। और सुनो, ये एक मर्ज है मगर लाइलाज नहीं है। उसकी शफा मौजूद है। अल्लाह ने मौत के सिवा कोई मौत ऐसा नहीं उतारा जिसकी शफा मौजूद ना हो, मगर शफा तुम्हें तब मिलेगी जब तुम वाकई संजीदा होकर शफायाब होना चाहोगी। मैं शफा चाहती हूँ, फातिमा फौरन से बोली। अल्हम्दुलिल्लाह, देखो किसी भी बीमारी के इलाज के लिए 2 चीज़ें लाजिम और मौजूद हैं। सबसे पहले तो परहेज और फिर दवा। परहेज में तुम्हें चंद काम करने होंगे ताकि अपना असर फौरी तौर पर कर सके। तुम होश होकर सुन रही हो। सबसे पहले तुम उसका नंबर डिलीट करके ब्लॉक करो। तमाम कन्वर्सेशंस और पिक्स सब कुछ डिलीट करो। उसके दिए हुए तोहफे, इन सब चीज़ों को खुद से दूर करो। कोई एक भी ऐसी चीज़ तुम्हारे पास ना हो जो तुम्हें उसकी याद दिलाए। जब तुम ये कर चुको हो तो फिर मुझे बताना। फातिमा ने आंसुओं का गोला हलक से नीचे उतारते हुए इस बात में सर हिलाया। और सुनो, कोई भी काम रब से दुआ किए बगैर शुरू ना करना। 2 नवाफिल पढ़कर हिम्मत मांगना, वो ज़रूर देंगे। अब की बार वो मुस्कुरा कर बोली थी, तुम चाहती हो ना कि तुम भी अल्लाह के करीब हो, तो पहला स्टेप यही है तुम्हारा। अल्लाह कुरान में कहते हैं, जब तक तुम इन चीज़ों में से जो तुम्हें महबूब है खर्च ना करोगे, तुम कभी भी नेकी को नहीं पा सकोगे। सो इट्स टाइम कि तुम अपनी मोहब्बत तरीन से महबूब तरीन चीज़ उसके लिए कुर्बान करो। कुरान वाहिद ज़रिया था जिसके आगे वो खुद को बेबस महसूस करती थी। इसने आंसुओं से भरी आंखें झुका ली थी। इस वक्त उससे बढ़कर कौन जान सकता था कि ये सब कुर्बान करना कितना मुश्किल था, मगर उसे अल्लाह को पाना था। अल्लाह जैसी हस्ती को पाने के लिए कुछ कुर्बान ना करना पड़ा, ऐसा कैसे हो सकता है। इसने खुद से अहद किया और फौरन रब से दुआ की कि वो उसे हिम्मत दे। शहरयार ने मगरिब की नमाज पढ़कर सलाम फेरा ही था कि उसे अपने पीछे बाएं तरफ दबी दबी सिसकियों की आवाज़ आई। फौरन से मुड़कर देखा तो एक नौउम्र लड़का दुआ के लिए हाथ उठाए अपने रब से मुनाजात करने में मसरूफ था। उसे एहसास ही नहीं था कि इसकी इन सिसकियों ने कितने ही कानों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया था। कुछ नजरें हसरत और रश्क से उसे देख रही थी और कुछ जजमेंटल होकर, मगर शहरयार एकदम से खटका था। उसे एक आखिरी बार की हुई अपनी दुआ याद आई जो इसने वाकई तड़प कर मांगी थी। ओह, रमज़ान में, और अब 6 माह गुजर चुके हैं। वो अफसोस के साथ गोया अंदर ही अंदर खुद से मुखातिब हुआ। इस नौउम्र लड़के की सिसकियों में कुछ ऐसा था जो शहरयार को अंदर से हिला रहा था। उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। वो उठा और मस्जिद से बाहर आ गया। मस्जिद के साथ ही औरतों का मदरसा था। इस फैलते अंधेरे में चंद औरतें मदरसे से निकल रही थी। वो मुकम्मल बुर्का पहने हुए थी, हत्ता कि आंखें भी नज़र ना आ रही थीं। इन पर नज़र पड़ते ही शहरयार ने अपनी निगाहें झुका ली। बस एक ख्याल उसके जहन से आकर गुजरा, काश नाइला और अम्मा भी ऐसे। शहरयार यही सोचते सोचते अपने बुक स्टोर की तरफ बढ़ गया। मगरिब की नमाज पढ़कर वो रोज़ अपने बुक स्टोर की तरफ आ जाता था जहाँ उसका साथी फराज सुबह से मौजूद होता था। फिर शाम से शहरयार की शिफ्ट शुरू होती थी। यहीं पर वो अपना ऑनलाइन काम करने के साथ साथ अपनी यूनिवर्सिटी का भी पढ़ता रहता था। अलनूर बुकलैंड इस वक्त शहर का सबसे बड़ा और मशहूर बुक स्टोर था जिसे ये दोनों नौजवान लड़के चला रहे थे। यहाँ हर आमो खास पुरानी नई हर फील्ड की बुक्स दस्तियाब होती थी। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के स्टूडेंट्स यहाँ आकर सस्ते दामों बुक्स खरीदते या अपनी बुक्स एक्सचेंज करवाते। शहरयार ने आकर सलाम दुआ के बाद फराज को घर भेजा और अपना काम संभाल लिया। फातिमा, बेटा मैं कब से मिसेस रियान ने फातिमा के कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए कहा, मगर कमरे का हाल देखकर वहीं ठिठक गई। हर तरफ कागज़, कपड़े, बुक्स, गिफ्ट्स, पैकेट्स, चॉकलेट्स और इसी तरह की दूसरी चीज़ें बिखरी हुई थी। फातिमा अपनी अलमारी से कुछ निकालने में मसरूफ़ थी, मगर अपनी मामा की आवाज़ सुनकर कुछ घबरा सी गई थी। मिसेस रियान वैसे तो एक हाउसवाइफ थी ही, मगर उन्होंने खुद को फिट रखा हुआ था। कभी जिम, कभी पार्लर, कभी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग तो कभी पिकनिक्स। घर में वो कम ही पाई जाती थी। अगर होती भी तो सारे दिन टीवी पर विराजमान रहती। फातिमा से दिन में 1-2 बार ही मुलाकात होती थी। कभी कभी ऐसा ही होता कि उसे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछ लेती, वरना अक्सर औकात बस नसीहतें ही करती। अप टू डेट रहा करो फातिमा, हर वीक पार्लर जाया करो, फ्ला ब्रांड पर सेल है, मेरे साथ चलना, कुछ हेल्दी खाया पिया करो, आगे जिम्मेदारियां संभालनी है, वगैरह वगैरह। फातिमा खामोशी से अपनी मामा की बातें सुनती रहती। उसे कभी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो अपने बारे में कुछ नहीं बताए।